Okay, welcome to the class. In today's session, we will be understanding more about valency. In the previous class, we have discussed about symbol and the importance of symbol, as well as laws of chemical combination. So if you have not checked out that, please go and watch that first, and then after this video. Okay. So valency, as per definition, valency is defined as combining capacity of an atom. So how much or how many bonds an atom can make, that's the valency, either atom or ion. Okay, so ions we have also discussed about positive ions and negative ions, that's cations and anions. Now some other definitions of valency are: it is the number of electrons lost or gained, number of electrons lost or gained or shared. So whenever an atom loses electron, or whenever an atom gains electron, it forms ionic bond. In that way, it forms ionic bond. And in ionic bond, one is cation, another is anion. So they come close to each other, and these opposite charges attract very strongly to each other, and hence an ionic bond comes into existence. Shared electrons, whenever sharing of electrons happen, so bond is covalent. Okay. So in that case, a number of shared electrons will decide the number of bonds between two atoms. So whatever number of electrons is lost, that will be a valency of cation. Whatever number of electrons is gained by an atom of an element, that will be the valency of that anion. And whatever electrons are shared, that will be the valency of that atom. One more definition is there that says that number of positive or negative charges on an ion will be its valency. Okay, so that thing I have already told you. Suppose if there is just one charge, on one positive charge, so valency is 1. Like if there are two positive charges, valency will be 2. What about negative charges? If there is single negative charge, valency will be 1. If there are two negative charges, valency will be 2. If there are three negative charges like N3 negative, valency will be 3. Okay, in case of positive charge, aluminum tripositive is having valency 3. Okay, mind it, it's very important to understand valencies, because these are used to form formulas. Okay, so whatever formula of a compound you are going to make, valency will definitely come to your help. So valency बहुत ज़रूरी है, याद रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. सो ये आपकी हेल्प करता है कि आप फार्मूला कैसे बना पाओगे. ठीक है, तो हम फार्मूला कैसे बनाएंगे वो मैं आपको वो आगे क्लासेस में बताऊंगा, लेकिन फॉर नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वैलेंसी. नाउ रूल्स टू डिटरमाइन वैलेंसी. क्या क्या रूल्स है जिससे हम वैलेंसी डिटरमाइन कर सकते हैं? देखो, उसके लिए आपको ये पता रहना चाहिए कि किसी एटम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, रूल पहला है इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अगर वो लेस देन और इक्वल टू 4, अगर वो लेस देन और इक्वल टू 4 है, देन इट इज टेकन एज वैलेंसी इटसेल्फ. ओके, फाउंड इन मेटल्स. सो मेटल्स में ऐसा होता है कि मेटल्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन्स जो है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, वो लेस देन 4 होते हैं या 4 के बराबर होते हैं, तो वैलेंसी वही मानी जाती है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है. लेकिन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मोर देन 4 है, चलो पहले इसको थोड़ा सा समझते हैं. इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन 4, 4 से ज़्यादा है, 4 से ज़्यादा है मतलब 5, 6, 7 ऐसे है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है जो है कि वैलेंसी विल बी इक्वल टू 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. सो ये एप्लीकेबल है सिर्फ नॉन मेटल्स के लिए. जैसे अगर हम यहाँ की बात करें, जैसे हाइड्रोजन, ठीक है, हीलियम तो नोबल गैस है, वो बॉन्डिंग नहीं करता, उसको रहने दो. फिर एटॉमिक नंबर 3 हीलियम, सॉरी, हीलियम को रहने दो, बॉन्डिंग नहीं करता. लिथियम की बात करते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, यहाँ तक. यहाँ एटॉमिक नंबर 1 K1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 है. यहाँ एटॉमिक नंबर 3 K2 L1, तो यहाँ का लास्ट शेल जो L है, यहाँ भी वैलेंसी 1 है. बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4 K2 L2, लास्ट इलेक्ट्रॉन 2 है.
तो एटॉमिक वैलेंसी भी इसकी 2 रहेगी। फिर है बोरोन एटॉमिक नंबर 5 K2L3, लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो इट इज़ लेस देन 4, सो यही मानी जाएगी इसकी वैलेंसी भी, वैलेंसी 3 है। कार्बन के पास K2L4 एटॉमिक नंबर 6 है ना, तो इसका भी 4 है लास्ट शेल में, तो इसकी भी वैलेंसी मानी जाएगी 4। लेकिन कहानी यहाँ से आगे जो है ना वो बदल जाती है। इसके आगे जो कहानी है वो है कि अब नाइट्रोजन देख लो एटॉमिक नंबर 7 K2L5, सो इट इज़ ग्रेटर देन 4 है ना, लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है दैट इज़ ग्रेटर देन 4, तो ग्रेटर देन 4 होने के कारण इसमें फॉर्मूला लगेगा 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है 5, तो 8 माइनस 5, तो वैलेंसी बन के आती है 3। ओके, वैलेंसी 3 बनकर आई। इसी तरह आप कर सकते हो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 कॉन्फ़िगरेशन K2L6, लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है दैट्स ग्रेटर देन 4, so use the formula 8 minus number of valence electrons, that's 6 in case of oxygen, 2 हमारा जो है आंसर आएगा, तो 2 is the valency of oxygen. So nitrogen can form 3 bonds just like this, one nitrogen combines with another nitrogen, ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना पाता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, ये N2 मॉलिक्यूल बन गया। ये ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन दो वैलेंसी रखता है, 2 वैलेंसी है इसका, तो इसका मतलब ऑक्सीजन बॉन्ड्स विथ अनदर ऑक्सीजन एंड इट हैज़ 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स, दिस इज डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, डबल कोवेलेंट बॉन्ड O2 मॉलिक्यूल में होता है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड तो आपको पता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन में होता है, जैसे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आपस में मिलके सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे H2 मॉलिक्यूल। तो वैलेंसी को लेकर आप बहुत सारे बाकी फार्मूलाज भी बना सकते हैं, वो मैं आपको अगली वीडियोज़ में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप ये टेबल देख लो और ये वैलेंसी देख लो, ठीक है। ये वो फार्मूला है जैसे नाइट्रोजन के लिए हमने कैलकुलेट किया था। हियर इज़ द टेबल, तो हाइड्रोजन से शुरू है और ये है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये है वैलेंसी, ये कॉलम में, ये वाली कॉलम में वैलेंसी, ये है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये है एलिमेंट। सो हाइड्रोजन से नियॉन तक। नियॉन में क्या होता है, देखो नियॉन का केस या फ्लोरीन का केस, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 K2L7, सो यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो 7 है, सो 8 माइनस 7 मीन्स 1, वो आया 1, देख लो। सो नियॉन, नियॉन में एटॉमिक नंबर 10 K2L8, तो यहाँ तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 8 है, सो 8 माइनस 8 का मतलब 0, तो ये आया 0। क्लियर? 0 वैलेंसी मीन्स इट विल नॉट फॉर्म एनी बॉन्ड, सो नोबल गैस है तो ये कोई बॉन्ड नहीं बनाता। ओके, सो नाउ चेक आउट दिस वन वैलेंसी चार्ट। ये जो आयन्स है, अभी तक तो हम एटम्स की बात कर रहे थे, नाउ अबाउट आयन्स। जैसे इसमें OH नेगेटिव है, हाइड्रोक्साइड आयन है, जैसे इसमें और दिया गया है क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड, आयोडाइड आयन, नाइट्रेट आयन, NO3 नेगेटिव, ये देखो 1 1 1 1 एक एक नेगेटिव चार्जेस है, देख लो सबके ऊपर। ये है बाइकार्बोनेट आयन HCO3 नेगेटिव, ये है एल्यूमिनेट आयन Al2O3 नेगेटिव, ये है Ag पॉजिटिव, सिल्वर पॉजिटिव है ना, सोडियम Na पॉजिटिव, H पॉजिटिव, K पॉजिटिव। H पॉजिटिव से याद आया H नेगेटिव भी बनता है, ठीक है, H नेगेटिव बनता है, हाइड्राइड बोलते हैं इसको H नेगेटिव को, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रखा है तो इसकी वैलेंसी 1। इसी तरह H पॉजिटिव, यहाँ से इसको प्रोटॉन बोलते हैं, या हाइड्रोजन लिखा हुआ है ना, हाँ प्रोटॉन भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर बस एक प्रोटॉन रहता है जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस होता है हाइड्रोजन एटम से, तो इसकी भी वैलेंसी 1। इसी तरह K पॉजिटिव पोटेशियम वैलेंसी 1। यहाँ पे देखो इन सब की वैलेंसी क्या है, इन सब की वैलेंसी है 1। ओके, नेक्स्ट ये देखो, ये डाई पॉजिटिव वाले, ठीक है, दो पॉजिटिव चार्जेस है या 2 नेगेटिव चार्जेस होंगे, जैसे कैडमियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम का आयन है, Hg, मर्क्यूरी का आयन है, जिंक, Zn डाई पॉजिटिव, बेरियम, ये है ऑक्साइड, एक ऑक्सीजन एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, 2 नेगेटिव। ये सल्फाइड है, S डाई नेगेटिव, ये क्रोमेट CrO4 डाई नेगेटिव, फिर कार्बोनेट CO3 डाई नेगेटिव, फिर सल्फेट SO4 डाई नेगेटिव, ठीक है, एंड देन ZnO2 डाई नेगेटिव, ठीक है, जिंकेट, ये मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल जिंकेट बनाएगा, जैसे सोडियम जिंकेट, ठीक है, Na2ZnO2 होगा वो फॉर्मूला। तो इन सब पे आप चेक करो एक बार, ये 2 नेगेटिव, ये भी 2 नेगेटिव, ये भी 2 नेगेटिव, ये 2 नेगेटिव, यहाँ से 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, तो 2 है, चाहे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, चाहे कैटायन या एनायन है, जब तक इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्जेस है या 2 नेगेटिव चार्जेस है, इस सब की वैलेंसी मानी जाएगी 2।
ठीक है, सबकी वैलेंसी क्या है 2। ऐसे भी कुछ एटम्स है जो वेरिएबल वैलेंसी दिखाते हैं, ठीक है, कभी 2 कभी 1 कभी 2 कभी 3, तो इस तरह करके। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, जैसे कॉपर और आयरन बोथ हैव वेरिएबल वैलेंसी। कॉपर की भी एक वेरिएबल वैलेंसी है और आयरन की भी वेरिएबल वैलेंसी। कॉपर दिखाता है Cu पॉजिटिव और Cu डाई पॉजिटिव, ठीक है। तो आयरन क्या दिखाता है 2 और 3, ठीक है। आयरन दिखाता है Fe डाई पॉजिटिव और Fe ट्राई पॉजिटिव, क्लियर। एल्युमिनियम की वैलेंसी फिक्स्ड है, वो है 3, ठीक है। इसी तरह अमोनियम आयन, अमोनियम ये आयन है, ठीक है, NH4 पॉजिटिव, इसकी भी वैलेंसी 1 है क्योंकि इसके ऊपर एक ही चार्ज है। इसी तरह एक और आयन याद आया अभी, दैट इज H3O पॉजिटिव, हाइड्रोनियम आयन, इसके ऊपर भी एक पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वैलेंसी भी 1 है। लेड के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, वैलेंसी 2 हो गई, ठीक है। और इसी के साथ होल्ड ऑन, इसी साथ अगर आप ये Cu पॉजिटिव का नाम देखो तो इट इज क्यूप्रस, इट इज क्यूप्रस। एंड अगर आप इसका देखोगे Cu डाई पॉजिटिव का, क्यूप्रिक, ये RIC और ROUS। तो कम वैलेंसी के लिए OUS लगता है लास्ट पे सुफिक्स, और हायर वैलेंसीज के लिए इक लगता है, ठीक है, वेरी गुड। इसी तरह जैसे आयरन का है, आयरन डाई पॉजिटिव, ठीक है, तो क्या आना चाहिए फेरस, ये OUS फेरस। और आयरन ट्राई पॉजिटिव हायर वैलेंसी के लिए फेरिक, ये IC लगा लास्ट पे। तो रस और रिक, ठीक है, रस और रिक ये होता है, तो इसको याद रखो। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड मॉलिक्यूलर फार्मूला और केमिकल फार्मूला। इससे पहले हमने सिंबल्स के बारे में पढ़ा हुआ था, दैट इज शॉर्ट हैंड और एब्रिवेटेड फॉर्म ऑफ ए नेम ऑफ ए एलिमेंट, ठीक है। इसी तरह शॉर्ट हैंड फॉर्म ऑफ ए कंपाउंड भी तो यही होगा, फॉर्मूला होगा, ठीक है। शॉर्ट हैंड फॉर्म ऑफ ए कंपाउंड इज फॉर्मूला। ये यहाँ पे एक फॉर्मूला है, ठीक है। कंपाउंड के लिए फॉर्मूला बोला जाता है और एलिमेंट के लिए सिंबल बोला जाता है, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला है। अगर मैं सिर्फ एक लिखूं, सपोज इस तरह लिखूं एटम के लिए, तो ये सिंबल हुआ, ये क्या हुआ, सिंबल हुआ। तरह अगर मैं यहाँ सपोज हाइड्रोजन के लिए H लिखूं तो ये सिंबल है, लेकिन अगर मैं H2 लिखूं तो ये फॉर्मूला है, ओके। इसी तरह अगर मैं CO2 लिखूं तो ये फॉर्मूला है, अगर मैं C लिखूं और O लिखूं तो ये क्या है, ये सिंबल्स है, ये सिंबल है। सिंबल एलिमेंट के लिए और फॉर्मूला कंपाउंड्स, यानी कंपाउंड्स के लिए या मॉलिक्यूल्स के लिए। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड हमने 2 पढ़ रखे हैं जब एटम्स कंबाइन होते तो, ठीक है। ओके, मूविंग अहेड। सपोज H2SO4 रिप्रेजेंट्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इट कंटेन्स। जब भी हम किसी चीज़ का फॉर्मूला लिखते हैं तो उस फॉर्मूला को देख कर ही हमको बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाता है कि इसके अंदर कौन से एटम्स है, कितने हैं, और एक फार्मूला लिखने पर हमको ये पता चलता है कि इस एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला को केमिकल फार्मूला भी बोलते हैं। ये H2SO4 लिखने से ही हमको पता चलता है कि इसके अंदर 2 एटम हाइड्रोजन के हैं, H2 लिखा हुआ है मैंने, 2 लिखा इधर, तो इसका मतलब 2 एटम हाइड्रोजन। 1 एटम सल्फर, सल्फर के सामने कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है, लेकिन अंडरस्टूड है ये 1 होता है, जिसके सामने कुछ नहीं लिखा है फॉर्मूला के अंदर वो 1 होता है। 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो ये दर्शाता है कि ये ऑक्सीजन के एटम्स 4 बार है इसके अंदर। अगर हम इन सब का एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास और ये कितनी बार आया है इस फॉर्मूला के अंदर, उसको उसी नंबर से मल्टीपल करेंगे, ऐड करेंगे फिर एटॉमिक मास दूसरे एटम का यानी सल्फर का, और ऐड करेंगे 4 टाइम्स आया है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास ऐड करेंगे। तो जब आप ये कैलकुलेट करोगे तो ये क्या आता है, ये 98 आता है। ये क्या है, ये जो 98 है, दिस इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 1 प्लस एटॉमिक मास ऑफ सल्फर 32 प्लस 4 टाइम्स एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास लिया जाता है 16,
तो ये 4 टाइम्स है क्योंकि 4 ऑक्सीजन एटम्स है। जब आप इस सबको टोटल करोगे, ऐड करोगे, तो इट विल कम आउट टू बी 98 ग्राम्स। ठीक है, वी कम टू द एंड। I hope you have enjoyed and you understood the concept. So if there is anything, कोई भी question है, तो please and please drop that in the comment box. I will make sure that I will answer your questions right on the time. Okay? Take care. Bye bye. And tell me आपको कौन सा टॉपिक अभी पढ़ना है, तो मैं वही टॉपिक पढ़ाऊंगा. Otherwise we are switching to structure of atom after this one.